welcome back to my channel. So here I am again presenting you with a very important news that has come up on Wednesday only. So our government has come up with a new educational policy, and that too very interesting. Like, after knowing that, you will be like, oh my god, why were we not in 8th class, 9th class, 10th class or earlier. So बहुत ज़्यादा जो पास्ड आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्हें तो काफ़ी पछतावा होने वाला है। और सच में जो हमारा यूथ है बहुत इन्जॉय करने वाला है स्टडी प्रोसेस को। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स जस्ट सी दैट व्हाट आर द की हाइलाइट्स और द ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। दैट इज़ also that too very big and exciting also. So let's just watch the video, and yes, watch full video to know, because every point gives you goosebumps and so much of excitement. So watch my video. So friends, without wasting much of time, let's start seeing the highlights of NEP 2020. These are the major reforms that has been taken place in educational sector. The very first is that 10+2 board structure is now dropped. इस तरह का स्ट्रक्चर अब नहीं रहेगा, जिसमें कि 10th क्लास तक यू हैड टू गो, और उसके बाद 11th एंड 12th में हमको अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करनी पड़ती थी, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अब नहीं है। देयर इज़ अ न्यू स्कूल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ऑफ द काइंड 5+3+3+4. So up to 5 it will be called as preschool, 6 to 8 it will be called as mid school, 8 to 11th it will be called as high school, and 12th onwards there will be graduation. So it's a very exciting structure, no? और इसके बाद आप देखिए, अप टू 5 जैसे प्री स्कूल है, और 6 to 8 मिड स्कूल है, 8 to 11th आपका हाई स्कूल है, 12 onwards ग्रेजुएशन है। तो आपकी कोई भी डिग्री 4 years से ज़्यादा की नहीं होगी, या तो इंटीग्रेटेड 5 years का बैचलर्स होगा या मास्टर्स होगा, इस तरह से तो है, पर 4 years से ज़्यादा कोई भी डिग्री नहीं है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है आपका ग्रेजुएशन में, वो 3 से 4 years तक का ही होगा, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी ऑफ 1 to 2 year, है ना, ईदर ऑफ 1 year or 2 year. So this is how it will be, and MPhil has been removed. Now 5th is 6th standard onwards vocational courses are available. Vocational courses में आपके सारे के सारे ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज, म्यूज़िक कोर्सेज एंड अदर एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ जैसे कि आपका कोडिंग वगैरह है, एंड स्टूडेंट्स कैन लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6th onwards. So that's cool. Now 6th is that 8th to 11th students can choose their subjects. So basically 8th में ही you have a great scope to choose any subject that you want to be expert in. Like, अब ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही हैं, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही आपको पढ़ना है, या आर्ट्स में है वाला बच्चा कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, या PCM वाले बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं। सो देयर इज़ नो बैरियर, देयर इज़ नो बैरियर, अब बिल्कुल भी कहीं बैरियर नहीं है, एंड यू कैन चूज़ एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। और आप जब यहाँ से बन कर के निकलेंगे, एट द एंड ऑफ योर स्टडीज़ यू विल बी फाउंड एज एन एक्सपर्ट इन एनी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट. ओके, सो 8th to 11th स्टूडेंट्स कैन चूज़ सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस, like a combination of 5 subjects, any 5 subjects. It could be like chemistry, it could be like history, and then psychology and computers. So it's a weird combination. हमें तो I don't think we could even think of that. This is an exciting structure now. So आने वाले बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है. Now 7th is all graduation course will have major and minor. Example, science student can have physics as its major and music as its minor. वही, if you have interest in music, okay, you love to play guitar or you love to sing, so music can be taken as a minor and physics can be taken as major. So this is like a major minor combinations. Then next is कि all higher education will be governed by only one authority. ठीक है, एक ही अथॉरिटी, जैसे भी UGC है और AICTE है, अब ऐसा नहीं होगा. there will be only one governing authority.
10th is all university, government, private, open, deemed, vocational, etc. will have same grading and other rules. Grading will not differ from one university to another or from private to government. इस तरह का कुछ भी नहीं होगा ग्रेडिंग में, सब जगह ग्रेडिंग सेम तरीके से ही की जाएगी. नेक्स्ट इज न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन कंट्री. नो स्टेट कैन चेंज. सो क्योंकि इतना मेजर रिफॉर्म अब आ गया है तो अब न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड भी सेटअप किया जाएगा. ओके. Next 12th point is the same level of accreditation to any college based on its rating. College will get autonomous rights and funds. And 13th point is new basic learning program will be created by government for parents to teach children up to 3 years in home and for preschool 3 to 6. So basically 13th में आपको क्या बता रहा है कि आप तक पेरेंट्स के पास इस तरह से कोई टूल नहीं होता था, अपने ही तरीके से दे यूज टू टीच इन एट होम. नाउ द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम लर्निंग टूल्स टू द पेरेंट्स थ्रू विच दे कैन टीच देयर चिल्ड्रंस एट होम एंड फॉर द प्री स्कूल फ्रॉम 3 to 6. So that tool will be provided by the government. 14th point is multiple entry and exit from any course. So as you guys know, इसमें क्या है, पहली बात तो 15th पॉइंट और देख लेते हैं. क्रेडिट सिस्टम जो है वो अब ग्रेजुएशन में पहले भी था लेकिन अब इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंसिडर किया जाएगा. क्या है क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन? फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट्स विच ही कैन यूटिलाइज इफ इट टेक्स ब्रेक इन कोर्स एंड कम बैक अगेन टू कम्प्लीट कोर्स. सो बेसिकली थिंग इज़ अभी तक भी देयर वो क्रेडिट्स पर इसका कोई ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में फ़ायदा नहीं हो रहा था. सो अगर आप मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन इज़ ऑफ 3 years, हाउएवर 2 years के बाद आपने ब्रेक ले लिया. मान लिया आपने सोचा जैसे कि यू नो द एग्जाम्पल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. सो बेसिकली ही कंप्लीटेड इंजीनियरिंग फॉर ओनली 2 years एंड देन ही ड्रॉप्ड आउट. सो बेसिकली अगर जो मान लिया 2 years उसने किया था उसमें उसने क्रेडिट्स जो भी अर्न करे अपने 4 सेमेस्टर्स में वो उसी के साथ उसको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ओके. तो अब अगर जब भी चाहे एट एनी एज वो अपने 3rd year से उन क्रेडिट्स को दिखाकर स्टार्ट कर सकता है. तो यू हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स. आप कभी भी एग्जिट ले सकते हैं अपने कोर्स से और कभी भी एंटर कर सकते हैं. दिस इज़ सो एक्साइटिंग. ओ माई गॉड. और नाउ 6th point is all schools exams will be semester wise twice a year. So school exams अब सिर्फ twice a year हुआ करेंगे. Great burden has been reduced. Very good news for the school students. Now 17th point is the syllabus will be reduced to core knowledge of any subject only. ओके. दैट जैसे मैंने बताया था कि आप एडेप्ट होके ही एक्सपर्ट होके ही निकलेंगे अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि आप जो है बिल्कुल उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा देखेंगे जो आपने चूज़ किया एज मेजर. नेक्स्ट इज मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज. तो ऑब्वियसली देयर विल नो रट्टा थिंग अब नहीं होगी. प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज पर आपका ज़्यादा फोकस किया जाएगा. 19th पॉइंट इज़ फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ़ स्टूडेंट कंप्लीट ओनली 1 year. ये मैंने आपको अभी बताया था कि अब आप किसी भी पॉइंट पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट से आप कभी भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं. तो एग्जिट कभी भी कर सकते हैं. तो फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ स्टूडेंट कंप्लीट ओनली 1 year ही गेट अ बेसिक सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा. If he completes 2 years then he'll get diploma certificate, and if he completes full course then he'll get degree certificate. So no year of any student will be wasted if he breaks the course in between. So basically what I told you कि ग्रेजुएशन में आप कभी भी अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ग्रेजुएशन से 2 years का किया है तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा. 3 years का किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी. ऑब्वियसली कई बार ग्रेजुएशन कई जगह 4 years की भी, जैसे कि बीटेक, वहाँ पे आपको डिग्री मिल जाएगी. सो you are just eligible for something at least in future. And 20th is all the graduation course feed of all universities will be governed by single authority with capping on each course. So this I have told you earlier कि यूनिवर्सिटीज़ को सिंगल अथॉरिटी ही अब जो है गवर्न करने वाली है. सो गाइज दिस इज़ अ वेरी 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 मेजर रिफॉर्म इन आवर कंट्री एंड इट साउंड सिमिलर टू लाइक द कंट्रीज़ that are foreign countries in fact. So I think this our coming generation is going to enjoy the process a lot. All the